Elle l'a reçu de l'Inde. Et chaque fois que l'Inde a été dans l'épreuve, la France a été à ses côtés. Je pense à l'histoire, je pense aussi au terrorisme. Nos deux pays ont été frappés et nous avons toujours été ensemble face à ces agressions, à ces attaques, parce qu'elles nous concernaient de la même manière. Le Premier ministre de l'Inde dit souvent que chaque fois que l'Inde est attaquée, c'est comme si la France l'était et inversement. Je tiens donc à vous remercier une fois encore, Monsieur le Premier ministre, pour la solidarité qui a été la vôtre lors des attentats qui ont ensanglanté le pays au mois de janvier dernier. De la même manière, j'exprime auprès de vous... January. And similarly, I express my indignation every time a terrorist is released when he is responsible for an abominable act. France and India work together. Up to governments are working together in order to ensure stability and the development of peace. We have a strategic partnership that was signed in 1998. And we have consolidated this partnership considerably during the Prime Minister's visit. First of all, we are fully aware that in the field of space we have celebrated the 50th anniversary of our cooperation, and we now share this technology, and we have the desire to pursue this partnership further. In the field of energy, especially when it comes to civil nuclear energy, which requires total trust, we have also signed important agreements in order to move forward on the iconic project of the construction of the EPR reactor in Jetapur. In the field of renewable energy, we have the desire to also be leaders in the matter in solar energy, in wind energy, and in general, when talking about energy efficiency with the respective companies, we are going to conduct new projects over and beyond what we've already done so far. Coming to defense, which is an important topic because both our countries cherish our independence, because both countries want to fully harness this technology, because both countries want to share and cooperate in intelligence and in everything pertaining to effective counterterrorism in order to ensure stability and peace once again. So we have numerous joint projects in the field of missiles, submarines, as well as in aircrafts. All of you are aware of the Rafale issue, and I will leave it to the Prime Minister to express the contents of our discussion. But we wanted to reaffirm one important thing, the fact that we are able to harness and share technologies. And I am very keen on what the Prime Minister advocates, which is Make in India. It's not just a program, it's a real desire, it's an ambition that we share. And this is why our partnership is not merely a partnership restricted to the economy, even though the economy is indeed important. We want high levels of growth in both our countries, but we also have a global responsibility. We have a role to play in terms of stability, security, and peace. And this is the reason why France supports India, so that this very big country becomes a permanent member of the UN Security Council and should therefore be part of all the crisis resolution
objectives. And also, coming to climate change, we have also discussed these issues in view of the upcoming climate change conference with Prime Minister Modi. And once again, we are perfectly in step when it comes to our desire and our analysis. We need India for this conference to be successful. We need its commitment. It is very important to reach a fruitful agreement in Paris. And in order to have a good, solid agreement in Paris, we need contributions from all countries in order to combat climate change and global warming. But once again, we have to make sure that financial commitments are made. And France would like to lead the way in this respect, precisely with this exceptional partnership that we have in India. We would like to have a joint approach. And in the years to come, we are going to earmark 2 billion euros to the development of an exemplary cooperation in the field of sustainable development and in the field of energy efficiency. We also want to share technologies, climate change technologies, and this will garner commitment from a lot of countries, including big countries such as India. So we have developed a Franco-Indian agenda for sustainable development. Finally, we would also like to show and prove that in a certain number of fields such as transportation, we have just signed a railway agreement, and there is also urban development, the 100 smart cities that the Indian government would like to launch. We would like France and French businesses to be part of this endeavor. Now, to conclude, on the human front, I would like to mention the fact that we've also addressed this dimension in Franco-Indian relations. And I told the Prime Minister that we had the desire to welcome more Indian students into France, so that we were prepared to train more Indian workers in France and through our universities, and cooperation agreements have been signed between the CNRS and its Indian counterpart, as well as between the universities of both our countries. We would also like cooperation in the field of culture, a very high-level cooperation in order to promote our cultural heritage through the Loire Valley castles and the palaces of Rajasthan. And we want to make sure that in this field we encourage more exchanges in the field of tourism, because I believe a lot of Indians want to discover France, and a lot of French tourists are very keen on visiting India as well. In the field of culture, once again, we would like to have exemplary cooperation in the field of cinema. I would like to conclude by pointing out what exactly the Franco-Indian partnership means on the political level. We are two large democracies. One became a democracy through its revolution and upholds the principles and values of democracy, and the other country had to earn its independence and has now become the largest democracy of the world. And we uphold the democratic values, these democratic values together, and we have the joint desire and the will to be involved in the resolution of some of the major issues in the world. We need to be exemplary in many fields, exemplary in the field of sustainable development. We have demonstrated this, exemplary when it comes to cross-investments, exemplary in the cultural field, and exemplary as well on the political front. And this is why the visit of Prime Minister Modi is so important for our country. Thank you very much. Thank you. His Excellency President Hollande,
Excellency, journalists and representatives of the media, I'd just like to say that I am very happy to be here in France. मेरे स्वागत और सम्मान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यूरोप की मेरी पहली यात्रा है, लेकिन पहली यात्रा मैं फ्रांस से शुरू कर रहा हूं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और फ्रांस के संबंध कितने गहरे हैं, कितने पुराने हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में इतना क्या महत्व है। फ्रांस भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों और विश्वसनीय पार्टनर्स में एक हैं। जैसे राष्ट्रपति जी ने बताया कि हम कई बातों में साझी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे समय और चुनौती भरे समय दोनों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। फ्रांस सदैव भारत के प्रति संवेदनशील रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फ्रांस ने खुलेआम भारत का साथ दिया है, भारत का समर्थन किया है। हम दो बड़े लोकतंत्र देश हैं, हमारे मूल्य एक जैसे हैं, हमारे हित कई माने में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे संबंध व्यापक हैं, जमीन से आसमान तक, सागर से अंतरिक्ष तक और अब साइबर क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें फ्रांस और भारत की साझेदारी न हो। आज मेरी और राष्ट्रपति ओलांद की बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंध पुराने और गहन है। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में फ्रांस हमेशा एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। फाइटर जेट से लेकर सबमरीन्स तक हमारे सहयोग उत्तम रहे हैं। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। हम दोनों ने निर्णय किया है कि भारत के लिए यह अलग प्रक्रिया में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन से और अच्छे टर्म्स पर होगा। हमारे अधिकारी इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी ने डिफेंस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का पूरा समर्थन किया है और मेक इन इंडिया सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, एक एम्बिशन, इस रूप में आपने उसकी सराहना की है। भारत और फ्रांस की कंपनियां मिलकर भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी और साथ ही साथ रक्षा तकनीकों का विकास भी करेंगी। इस संदर्भ में आज मेरी फ्रांस के डिफेंस कंपनी से काफी विस्तार से बातें हुई हैं। आज हम भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले गए हैं। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में फ्रांस भारत के प्रमुख साझेदारों में एक है। मुझे खुशी है कि जैतापुर में 6 न्यूक्लियर प्लांट बनाने पर हमने प्रगति की है। बिजली बनाने की कीमत को कम करने के संदर्भ में और अधिक तकनीकी समीक्षा और स्टडी करने के लिए दोनों पक्षों ने आज समझौता किया है। विशेष करके आज अरेवा और एल&टी के बीच भारत में फोर्जिंग्स बनाने के लिए समझौता हुआ है और मैं मानता हूं ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया का यह उत्तम उदाहरण होगा और भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई जगह मिलेगी। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम
मैं सदस्यता के लिए भारत फ्रांस के ठोस समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। अंतरिक्ष सहयोग में भारत और फ्रांस ने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। मुझे खुशी है कि आज राष्ट्रपति जी और मैंने भारत और फ्रांस का एक संयुक्त पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। हमने साथ मिलकर सैटेलाइट के निर्माण और लॉन्च में सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत के मंगलयान मिशन के बाद हम अब मिलकर के प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में भी सहयोग करेंगे। आज भारत में विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक वृद्धि हो रही है। भारत के विकास में फ्रांस बड़ा योगदान दे सकता है और उसका यहां पर भी आर्थिक लाभ होगा। आज सुबह मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फ्रांस की इंडस्ट्री से मिला था। राष्ट्रपति और मैं अभी सीईओ फोरम से भी मिले। मेरा विश्वास बढ़ा है कि फ्रांस की कंपनीज भारत में निवेश बढ़ाएंगी। भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण में भी हम सहयोग करेंगे। मेरी सरकार के अन्य पहले जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया क्षेत्रों में हम फ्रांस के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। मैं ओशन इकोनॉमी का सस्टेनेबल विकास यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन पर बहुत बल देता हूं। इस संदर्भ में आज मरीन बायोलॉजी के क्षेत्र में समझौते का विशेष स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि फ्रांस हमारे साथ मिलकर अर्बन हेरिटेज और टूरिज्म प्रमोशन में आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में फ्रांस की क्षमता से सभी परिचित हैं। मुझे राष्ट्रपति जी को यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हुई कि फ्रांस के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के माध्यम से आसानी से भारत आने की सुविधा दी जाएगी, जो संबंधों को तो बनाते हैं, टूरिज्म के लिए सरलता पैदा करते हैं। आज हमने समझौता किया है कि दोनों देशों में पढ़ाई के बाद हमारे छात्र देश में और समय रहकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर कर सकते हैं, जिससे उनको रोजगार मिलने की क्षमता बढ़ेगी। आज विश्व में एक चुनौतीपूर्ण माहौल है। कई क्षेत्रों में उथल-पुथल हो रही है, जिससे सभी प्रभावित हैं। बदलती दुनिया में स्थिरता के बारे में कई अनिश्चित प्रश्न हैं। समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा सभी के लिए चिंता का कारण है। आतंक फैल रहा है और नए नए स्वरूप ले रहा है। विश्व के अनेक क्षेत्रों और शहरों में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है, चाहे पेरिस हो या मुंबई। भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के दर्द को सहा है और समझा है। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। इसमें ये हर देश का दायित्व है कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में पूरा समर्थन दें, आतंक समूहों को पनाह लेने न दें और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दें। भारत और फ्रांस इन चुनौतियों को कई मायने में एक तरह से देखते हैं और इस कारण हम अपने सुरक्षा सहयोग को और घनिष्ठ करेंगे। इस संदर्भ में हम इंडियन ओशन के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स हम दोनों का संयुक्त दायित्व है। भारत के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन के लिए मैं फ्रांस का बहुत आभारी हूं।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत में पेरिस में होने वाले COP21 सम्मेलन में फ्रांस के नेतृत्व में विश्व के लिए एक नया रोड मैप बनेगा। भारत और फ्रांस मिलकर क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा के विषयों पर अपना सहयोग आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं फिर से राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई ऊंचाई पर पहुंची है, जो दोनों देशों के नागरिकों के भविष्य को उज्जवल करने में और विश्व में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को साकार करने में योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Monsieur le Premier ministre, je suis très sensible aux annonces que vous avez pu faire cet après-midi ici à Paris en matière d'énergie, d'espace, de développement durable. Sustainable development and defense. Particularly your desire to acquire 36 Rafales as soon as possible, and also to work on the contracts and negotiations. The Minister of Defense will be working on this very soon. These facts show that our partnership has moved up to a new stage of cooperation, and that our two countries, in fact, have a tie, a bond, which goes well beyond what we have just stated. It is a relationship of trust. दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर एक नई दिशा में बढ़ते हुई स्थिति, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया उसमें खास तौर से ओशन टेक्नोलॉजी, जो ब्लू रेवोल्यूशन का नाम उन्होंने दिया, और उसके अलावे अर्बन हेरिटेज यानी शहरी क्षेत्र को लेकर और टूरिज्म के मद्देनजर समझौते का जिक्र हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस दिशा में दो बातें थी उस दिशा में बातचीत आगे की जाएगी, वो राफेल जेट्स का जिक्र था। प्रधानमंत्री चाहते थे इसी मौके पर समझौता हो जाए, लेकिन दोनों देशों के अधिकारी और डिफेंस से जुड़े क्षेत्रों के अधिकारी बातचीत करेंगे। 36 राफेल जेट्स जल्द से जल्द भारत को मिल जाए, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में आगे कदम बढ़ेंगे और जल्द से जल्द भारत के साथ इस समझौते पर आखिरी मुहर भी लग जाए, इस दिशा में बात हुई है। इसके अलावा दूसरी स्थिति जैतपुर परमाणु संयंत्र को लेकर थी, जिसमें है कि 6 न्यूक्लियर प्लांट तकनीकी क्षेत्र में दोनों देशों के जो भी वहां के विशेषज्ञ हैं वो मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टडी करेंगे। इस पे भी था भारत का कि इस पे कोई समझौता हो जाए, जो इस दिशा में समझौता नहीं, लेकिन बातचीत हुई है और ये बात आगे जल्द से जल्द समझौते की दिशा में आ जाएगी। ये दो क्षेत्रों को लेकर खास तौर से हर किसी की नजर थी। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण समझौते का जिक्र है वो रेलवे के क्षेत्र में है, मैरीन इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में है, रक्षा क्षेत्र में है, परमाणु सौर ऊर्जा को लेकर समझौते की दृष्टि आगे बढ़ी है। खास तौर से फ्रांस ने जो जिक्र किया है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर, बार बार फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के सहयोग और जरूरत का जिक्र भी इसमें किया है। राजीव डोगरा जी, क्या लगा इसके बाद? देखिए, जहां तक हमारी एयरफोर्स का सवाल है, उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत है और फाइटर लड़ाकू विमानों की। तो इसमें साइन तो नहीं हुए, पर काफ़ी कॉन्क्रीट दिशा में जो 36 एयरक्राफ्ट का आंकड़ा भी दिया गया है वो, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन, तो मतलब एक अबव बोर्ड टाइप का वो फॉर्मूला इख्तियार करना चाहते हैं। तो मेरे को यह लगता है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो एक उपलब्धि है इस दौरे की, शायद ये है। दूसरी जो है, जो आपने न्यूक्लियर वाला इशारा किया जैतपुर का, तो मैं तो ये कहूँगा कि फ्रांस अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि दुनिया के बहुत कम मुल्क हैं जहाँ पे 70% ऊर्जा जो है वो न्यूक्लियर पावर से आती है। बाकी जैसे अमेरिका है, 30 साल तक तो उन्होंने कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाया ही नहीं था अपने यहाँ, तो अब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है राजीव डोगरा जी, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है।
यह पॉजिटिव इंडिकेशन है। पर साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है वो न्यूक्लियर क्षेत्र में भी लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी 900 मेगावाट तक की प्लांट्स लगाने की क्षमता रखते हैं, तो उनको भी उतनी एनकरेजमेंट देनी चाहिए इस फील्ड में। पुष्पेश जी, क्या लगा इस समझौते की फहरिस्त देखकर? मैं डोगरा जी से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है दो कम से कम ठोस कदम इसमें साफ नज़र आ रहे हैं कि रफाल समझौता अगर एकाएक पूरा का पूरा फ्रांस की अपेक्षा थी, भारत अगर खरीदता पूरे 60-65 तो शायद सौदा एकदम हो जाता, मगर उसकी आलोचना स्वदेश में होती कि हम एकाएक अपनी वायुसेना के लड़ाकू जहाज़ों की खरीद रूस से मोड़ रहे हैं फ्रांस की तरफ। अमेरिका भी थोड़ा नाराज़ होता, जर्मनी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, ब्रिटेन वाले भी खफा होते। तो एक कम से कम एक कदम उठाया गया जो शनै शनै इस खरीद को भविष्य में रूप दिया जा सकता है। मुझे एक बात जो थोड़ी अटपटी लगी कि जहां फ्रांस के राष्ट्रपति ने बारंबार क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बारंबार आतंकवाद का जिक्र किया। तो इन दोनों का तालमेल दोनों भाषणों में अगर होता तो शायद वो सामरिक जिस साझेदारी की बात कर रहे हैं उसके बारे में विश्वसनीयता थोड़ी और प्रगाढ़ होती। मगर उनकी प्राथमिकता क्लाइमेट चेंज में भारत की सहमति लेने की है, हमारी प्राथमिकता मल्टीकल्चरल समाज वहाँ का है, बहुलवादी विविधता वाला, वहाँ भी आतंकवाद का निशान। मगर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चाबंदी की बात अपने भाषण में नहीं की, इन्होंने अपने भाषण में क्लाइमेट चेंज की बात उतने जोर देकर नहीं की। तो दोनों की अपेक्षाएं शायद पूरा हितों का सन्निपात सब जगह हो रहा है, कहना शायद बहुत आसान नहीं है। राजनीतिक तौर पर सलमान सोच जी, क्योंकि इससे पहले 2013 में भी जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे, उस वक्त भी कई दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में, जिसका जिक्र आज भी हुआ है, उस दिशा में समझौते की दिशा में कदम आगे बढ़े। लेकिन किस दृष्टि से आप इस यात्रा को देख रहे हैं? और आज जो समझौते की फहरिस्त हुई है जिसमें 20 क्षेत्रों में समझौता, 2 अरब का निवेश, 2 अरब यूरो का निवेश, और इन सब के बीच राफेल पे 36 राफेल, जाने से पहले सरकार 60-62 राफेल विमानों के सौदे का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब वो 36 पर आया है। लेकिन वो अभी बातचीत दोनों देशों के बीच होगी, और एज अर्ली एज पॉसिबल अकबरुद्दीन साहब ने ट्वीट किया है, जितनी जल्दी हो सके वो मिल जाएगा। सलमान सोच जी, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा इशू है जिसमें गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए लेकिन एक कंटिन्यूटी होती है। रफाल जेट्स की जो शुरुआत यूपी के सरकार में हुई है उसमें अब इसमें थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है जितने एयरफोर्स चाहती होगी। लेकिन कुछ देखिए क्या नेगोशिएशंस हुई हैं उसका मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हुआ है, चलिए वो मानते, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और जो मेक इन इंडिया कंपोनेंट था इस डील का, उस पे शायद एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मैं दूसरी बात ये कहूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी की आपने बात की, उस पर आपको पता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अभी इन जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जब तक हम कुछ देखें ना, एक्शन ना देखें, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्शन तो यही सिनेमा और पोस्टर स्टैम्प पे मोहर लगाने वाली बात हुई। ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं जब मोदी जी का मैंने ये देखा है कि वो काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। वो उन्होंने लुक ईस्ट की बात की, फिर लिंक वेस्ट की बात की, फिर सागर यात्रा की बात की, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस एक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शहनवाज जी, अरेबा और एल&टी कंपनी के बीच दोनों मिलकर सॉरेंस का उत्पादन करेंगे, इसका जिक्र हुआ है, लेकिन इसके अलावा मेक इन इंडिया का वो हिस्सा कहीं अछूता रह गया कि कितनी कंपनीज भारत में आए, प्रोडक्शन की दिशा में बढ़े, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान शुरू हो जाए। शहनवाज जी, देखिए उन्होंने पूरी प्रेस मैंने भी सुनी है और आपने भी सुनी जी। सलमान सोच साहब को शायद एक ही लाइन वो स्टैम्प वाली सुनाई दी है। कितनी बड़ी बातें हुई हैं, जहाँ राफेल जेट की बात हुई है, परमाणु रिएक्टर की बात हुई है, जहाँ नागपुर और पांडिचेरी में स्मार्ट सिटी की बात हुई है। समझौते बहुत हुए हैं। अगर वो पूरा समझौता पढ़ते तो 2 बजे रात तक हम लोग बैठकर वही सुन रहे होते। समझौते बहुत हुए हैं, भारत के हित में हुए हैं, और मुझे लगता है सलमान साहब को पहली लाइन पर कायम रहना चाहिए कि जब विदेश नीति में कोई कटाक्ष की ज़रूरत नहीं है, ये भारत का समझौता है, भारत और फ्रांस के बीच में है, हर भारतीय को खुश होना चाहिए। जिस तरह की बातें अभी हुई है कि हमारी यूएन की प्राइम मेंबरशिप में, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप में वो मदद करेंगे। उन्होंने नरेंद्र भाई ने विज्ञान और तकनीक के मामले में भी
जो हम आपस में सहयोग करेंगे उसके लिए कहा है, पर्यटन के बारे में कहा है। तो ये सारी बातें उन्होंने, और जहां आतंकवाद की बात है, पहले ही वहां के राष्ट्रपति इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो लखवी की रिहाई का विरोध कर चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो बात रिपीटेशन में वहां से हो, लेकिन पूरे दुनिया में जो आतंकवाद की चुनौती है इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। उसमें फ्रांस साथ है, इसका भी जिक्र हुआ है। मैं समझता हूं बहुत कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 20 समझौते हुए हैं, तो जब 20 समझौते हुए हैं तो उसमें एक का रेफरेंस हो सकता है जिसमें आपने LNT वाली बात कही है जी, लेकिन 19 समझौते और देश के हित में हैं। और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर भी अगर जो फ्रांस यहाँ पर जो कुछ भी करेगा उसका फायदा भारत को होगा, तो ये समझौता हम इस मुद्दे पर लौट रहे हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो समझौते हुए उसमें हम दर्शकों को एक जानकारी दे दें। रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है, किस क्षेत्र में, इसको लेकर बातचीत जो हुई है वो 2 क्षेत्रों में जिसको लेकर माना जा रहा था कि इस पर समझौता होना चाहिए, जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं, वो राफेल जेट्स का जिक्र था और जैतपुर परमाणु संयंत्र के मद्देनजर जिक्र था।